শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সেই সময় দাঁড়িয়ে কানাইপুরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ও বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পান্ডা আসায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র জল্পনা। তবে এই প্রসঙ্গে আশালাল যাদব পরিষ্কার জানিয়েছেন যে তৃণমূলে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। এটাও হতে পারে তার ভাই দিলীপ যাদব তৃণমূলের জেলা সভাপতি হয় তার নামকে বদনাম করতেই কেউ কেউ হয়তো এসব ঘটাচ্ছে। উনি জানান, গতকাল রাতে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ও শঙ্কুদেব পান্ডা নিজের কাজে এই এলাকায় এসেছিলেন। সেখান থেকে শুধু সৌজন্য সাক্ষাতেই তাদের বাড়িতে আসেন, এতে রাজনীতির কিছু নেই। যেদিন ওই শুভেন্দুর ফ্লেক্স পড়েছিল সেদিন আপনি কিন্তু সাংসদের বিরুদ্ধে একটু মুখ খুলেছিলেন, তো তারপরে অর্জুন সিং। না, আমি সাংসদের বিরুদ্ধে মুখ খুলিনি, আমি মুখ খুলেছিলাম অন্যরকম। যেরকম যে একটা লোক দলে আছে, তার কোনো কারণে ফ্ল্যাক্স দলের ছেলেরাই পুড়িয়ে দেবে, এটা ঠিক নেই, আমি এইটা বলেছিলাম। আমি কিন্তু কখনো সাংসদের বিরুদ্ধে আমি কি বলবো ভাই, উনি অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ, উনি তিনবারের আমাদের সাংসদ, উনি কতটুকু কি আছে না আছে জানি না, কিন্তু আমার কাছে ওনার বাইরে শুভেন্দু অনুগামী না, এটা তো কোনো কারণই নেই। আমি শুভেন্দুর সঙ্গে সামনাসামনি আমার কোনোদিন দেখা নেই, শুভেন্দুর অনুগামী হওয়ার কোনো কারণে নেই। বরঞ্চ বলতে পারেন যে আমি কল্যাণ ব্যানার্জির অনুগামী। আর বাইরে একটা আপনার দলের লোকেরাই বলা বলি করছে যে হয়তো কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানই কন্যগড়ের মধ্যে প্রথম হয়তো বিজেপিতে যেতে পারে। দেখুন, অ্যাকচুয়ালি কি আছে যে কিছু লোক রাজনীতিবিদ আছে, তাদের কাছে কোনো কাজ থাকে না, ওই কাজটা করার জন্য তো কিছু লাগবে। ধরুন আপনার বাড়িতে বউ আপনাকে প্রাধান্য দিচ্ছে না, তাহলে আপনাকে বাইরে গিয়ে কিছু গল্প করতে হবে। তো এইরকম লোক আছে যারা গল্প করে, এটা নিয়ে আমার খুব কারো বলার নেই। আর আপনাদেরকে দুটো কথা বলে দিই, আমার বউ কী কাপড় পরবে সেটাও আমাকে সংবাদ মাধ্যমকে বলতে হবে, এটা কিন্তু ঠিক না। অর্জুন সিং অ্যাকচুয়ালি সুন্দরকাণ্ড করানোর জন্য এখানে একটা দলকে ঠিক করতে এসেছিল আমার বাড়ি 4-5টার বাড়ি আগে। সেখানেই চর্চার মধ্যে জানতে পারলো যে আমি এখানে থাকি। ন্যাচারালিও হাঁটতে হাঁটতে একটু চলে এলো। এসে যখন আমি দরজা, তখন তো আর একটা অতিথি এসছে, অতিথি দেবভব, কোনোভাবে কোনো লোককে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। আমি নিশ্চিতভাবে আমার বাড়ি এসেছিলো, আমরা বসে কিছুক্ষণ কথা বলেছি। এই সময় যখন তৃণমূল থেকে অনেকে বিজেপির দিকে যাচ্ছে, আপনি একটা পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্বে রয়েছে, আপনার ভাই হুগলি জেলা তৃণমূলের সভাপতি, সেই সময় মেসেজটা একটু অন্যরকম হচ্ছে না? দেখুন, দুটো জিনিস আছে। একটা লোক তো আপনার বাড়িতে কোনো লোক চলে আসলে তাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে আপনি বার করতে পারবেন না। দ্বিতীয় কথাটা আছে যে নিশ্চিতভাবে দিলীপ যাদব যিনি জেলার সভাপতি, তাকে লোকেরা কোনো বিষয়ে ধরতে পারে না। আর আমার যতটুকু হয়েছে, এটা পলিটিক্যাল একটা ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, অর্জুন সিংকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে একটা ওর দিলীপ যাদবের নামটা মেলাইন করা। আগে থেকে কোনো কথা হয়নি? না, আমার সঙ্গে দেখুন, আমার ফোন নম্বর আপনাদের কাছে আছে, সবার কাছে, যেখানে যে পারে সে করে দিক, আমার কারোর সঙ্গে কোনো কথা হয় না। বিশেষ করে বিজেপির লোকের সঙ্গে তো কথা হওয়ার কোনো কারণই নেই। কালকে হঠাৎ শঙ্কুদেব পান্ডার সাথে তো আপনার আগে থেকেই আলাপ ছিল, তৃণমূল ছিল। শঙ্কু অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে এসেছিল, সে আসতেই পারে। ও তো 2008 সাল থেকে ও আমার সঙ্গে জানাশোনা আছে। তারপরে ছাত্র পরিষদ করতো, আমার স্নেহ ধন্য ছেলে ছিল। এখন যেহেতু অন্য দলে আছে, তার সঙ্গে তো আমাদের যোগ রাখার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কেউ বাড়িতে, যেরকম আপনারা আমার বাড়িতে এসছেন, আমি তো আপনাদেরকে তিরস্কার করে আপনাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারি না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, না বললেই আপনারা আবার আমাকে টুইস্ট করতে শুরু করবেন। তো সেই যে বাঁচার জন্য অনেক সময় মানুষকে আপ্যায়ন করতে হবে, অতিথি আপ্যায়ন। এটা কি পলিটিক্যাল কোনো? না, আমার সঙ্গে কোনোভাবে পলিটিক্যাল আলোচনা হয়নি। উনি জাস্ট এমনি বলছিলেন যে আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করি, আমি জেলার প্রত্যেকটি নেতাকে জানি, এইগুলো কথা ছিল। কিন্তু পলিটিক্যালি কোনো এমনিতে এসেছিল, একটু কফি খেলো, কফি খেতে তারপরে। কিন্তু এটা পলিটিক্যালি ভাবে আপনাকে কি মানে ইয়ে করার জন্য, যেহেতু আপনার ভাই একটা পজিশনে, আপনি একটা পঞ্চায়েত প্রধান, তাদের কাছে এজেন্ডা থাকতে পারে। কিন্তু আমি তো তৃণমূল কংগ্রেসের একদম সবচেয়ে ছোট স্তরের কর্মী। আমার মতন লোকের ওখানে বেটেজ বা দরকারের কোনো খুব একটা প্রয়োজন নেই আমার মনে হয়। এটা নয় যে আমাকে অফার দেবে বা দেবে। অফার দেওয়ার আর নেওয়ার জন্য অনেক বিধায়ক এমপিরা আছে, তাদেরকে দিচ্ছে। আমাদের মতন ছোট কর্মীকে খুব গুরুত্ব দেওয়ার মতন কারণ কোনো বিজেপি। কিন্তু আপনি একজন দাপুটের নেতা। না, কোনো প্রশ্নে উঠে না। আমি তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে যে সম্মান দিয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করেছে, পঞ্চায়েতের প্রধান করেছে। দেখুন, আমার বাড়িতে কোনো লোকই আসতে পারে, আসার জন্য তো কোনো বার নেই। কিন্তু সময়টা, এই সময় এটা নিশ্চিতভাবে, এটা আপনাকে বললাম তো যে যেহেতু দিলীপ যাদবকে অনেক সময় দেখবেন মেলাইন করার জন্য,
আমার নামটাকে ইউটিলাইজ করা হলে বিভিন্ন জায়গাটাতে আমি দেখেছি এটা হতে পারে একটা ওই রকম চক্রান্ত থাকতে পারে। বলছি একের পর এক হেভিওয়েট নেতা তৃণমূল ছিলেন বিজেপি আসছে, মমতার অভিযোগ যে দল ভাঙার চক্রান্ত করছে বিজেপি। দেখুন, আমি তো আগেও বলেছিলাম আপনাদের যেদিন মেদিনীপুর বাঘ চলে আসবে সেদিনই দলটাই থাকবে না। আমি 1 মাস মধ্যে আপনারা দেখুন দলটাই পুরো বলছি যে বলছে পাপের টাকা ছড়াচ্ছে বিজেপি। না, এরকম কোনো ব্যাপার না। যারা যারা এখন পার্টি থেকে সরে গেছে বা পার্টিতে ওরা যোগাযোগ রাখতে পারছেন না বা কথাবার্তা বলতে পারছেন না নেত্রীর কাছে, ওরাই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করবেন। কিছুদিন আরও অপেক্ষা করুন, কেন কি মমতা সরকার এখন তোলাবাজ সরকার হয়ে গেছে। আর যে আইপ্যাক এসছে প্রশান্ত কিশোর, এই সবাইকে চাইছে কি আমার মতন চলুক, আমার মতন কাজ করুক, সেটা হবে না। ওই দুয়ারে সরকার বঙ্গধ্বনি যাত্রা করে কি এখন দুয়ারে সরকার যে যাচ্ছে চোরেরা যাচ্ছে। আপনারা জানেন সোমনাথ শ্যাম এখানে আছে, আপনাদের জগদল এখন প্রচার করছে লোহা চোর, সব থেকে বড়ো লোহা চোর সোমনাথ শ্যাম, গোপাল রাওত, দারু সিং, সব তো লোহা চোর আছে, এক থেকে এক মানে উপরে আছে এরা সব লোহা চোররা এখন দরে দরে প্রচার করছে। তো মানুষ এটা জানে, মানুষ আগে থেকে জানে লোহা চের কে আছে। জগদল অঞ্চলে আতপুর অঞ্চলে জানে লোহা এখান থেকে রামস্বরূপ থেকে কে চুরি করেছে, যে চুরি করছে সে আজকে প্রচার করছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, যে বম চালিয়েছিল তারা আগে আজকে প্রচার করছে। সেটা এই যে মানুষ মেনে নেবে না। সুবোধ অধিকারী বা সোমনাথ শ্যাম বা নাট্যকার পার্থভূমি আসতে চাই দলে কী বলবেন? দেখুন, দলে আমি যেটুকু জানি এদেরকে না নিয়ে ওটা ভালো, কেন কি এরা চোর, একটা লোহা চোর এখানে আছে বীজপুরে, একটা লোহা চোর সোমনাথ শ্যাম, আর মধ্যিখানে এই আছে পার্থভূমি, 2 জায়গা থেকে কমিশন খায়। এদেরকে নিয়ে কোনো লাভ হবে না, ভোট কমবে। হ্যাঁ, ভোটও কমবে, মানুষ এটা ভালো চোখে নেবে না, তাই জন্য এদের না। डेवलप हो गया, लेकिन हमारा बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल दिन पे दिन पीछे जा रहा है। यहाँ जितनी भी जूट मिलें थी, जितनी भी इंडस्ट्री थी, जितनी भी फैक्ट्री थी, दिन पे दिन बंद होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों को हो रहा है। उनको काम नहीं मिल रहा, उनको काम के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ा। और ये सबसे बड़ा समस्या तब देखने को मिला जब कोविड का समय आया। जब कोविड के समय में उनको वहाँ से दूसरे राज्य से उनको अपने राज्य में भेजा गया, और जब अपने राज्य में भेजने की बात आ रही थी तो यहाँ की खुद की चीफ मिनिस्टर ने बोला कि मैं उनको अपने राज्य में नहीं बुला सकती हूँ, यहाँ बहुत सारी समस्या है। तो जब ऐसे लोग अपने लोग जब दूसरे राज्य में जाएंगे और जब ऐसी समस्या आएगी तो अपने राज्य की चीफ मिनिस्टर ये बोलेगी कि मैं किसी राज्य के लोगों को मैं लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि समस्या अभी बहुत बड़ी है। तो आप बताइए तो फिर लोग जाएंगे किधर? यही समस्या हुआ अम्फान के समय में। अम्फान के समय में जब तूफान है, बहुत लोगों का घर टूट गया, बहुत लोगों का घर बिल्कुल लोग इधर से उधर चले गए। जब यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने फंड भी पास की, लेकिन उस फंड को क्या सही तरह से लोगों के पास पहुंचा? नहीं पहुंचा। उसमें भी कुछ लोगों को पहुंचा और वो भी चेहरा देखकर उनको पैसा दिया गया जो टीएमसी करते थे या जो कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़े थे। और उसमें भी सब लोगों को बोला गया था कि उनके अकाउंट में 20,000 रुपया जाएगी, लेकिन गया कितना? 5,000 रुपया। 20,000 सिर्फ उन्हीं लोगों को गया था जो टीएमसी करने वाले थे। और कहीं ना कहीं उसमें भी आप देखेंगे कट मनी वाली समस्या हुई। तो ऐसी समस्या आने वाले समय में आपने देखा है, मतलब जो भी हमारे इस साल में 2020 में जो आया, इतना सारा प्रॉब्लम आया, अम्फान हुआ, कोविड हुआ। कोविड के समय में हमने क्या देखा कि जो ममता दीदी ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, हमने सुपर हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन सही मायने में जब कोविड का जब मरीज बीमार था और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेके जाया जाता तो वहाँ देखा जाता उनको बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहा है। कितने ऐसे थे माँ बाप जो अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर बैठे हुए थे हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, उनके गोद में ही मर गया। कितने ऐसे माँ बाप थे जो कितने ऐसे माँ बाप का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो अपने बच्चे के हाथ गोद में मर गए। तो ऐसी सब समस्या देखने को मिली। तो फिर वो जो हमारी सीएम ने जो हमारी बात कही थी कि हमने सुपर हॉस्पिटल बनाया है, तो वो सुपर हॉस्पिटल कहाँ गया? वो सुविधाएं कहाँ गई? आज भी आप देखते हैं कोई अगर गरीब आदमी
बीमार पड़ता है, अगर बहुत क्रिटिकल केस में रहता है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी इलाज करनी होती है। तो ऐसे अगर लोग अगर ऐसी समस्याएं में जब गवर्नमेंट उनको सुविधाएं नहीं दिलाता है तो ऐसे गवर्नमेंट का क्या मतलब है? तब तो आपको ऐसे गवर्नमेंट को लाना चाहिए जो आपकी हर तरह की सुविधाएं दें, आपको हर तरह का जो आपका जरूरत है उसको पूरा करे। और आप जानते हैं आपने सभी को मौका दिया, सीपीएम गवर्नमेंट से परेशान होकर आपने टीएमसी गवर्नमेंट को लाया, टीएमसी गवर्नमेंट से आप देख रहे हैं उनकी क्या सुविधाएं आपको दे रहे हैं। अब आपको एक नया उम्मीद और नया चेहरा दिख रहा है, नया पार्टी दिख रही है जो सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी आने के लिए बस आप लोग का इंतजार कर रही है कि आप लोग उनको आने वाले समय में वोट देकर उस सरकार को लाना है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं उस सरकार की पार्टी करता हूँ इसलिए नहीं, मैंने उस सरकार को देखा है दूसरे राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रही है और अपने आप को प्रूव भी किया है। उन्होंने बहुत ऐसे स्कीम जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। और वो जो आयुष्मान भारत है वो फेलियर नहीं है, आप देखेंगे वो आयुष्मान भारत आप सिर्फ बंगाल में नहीं, वो किसी भी राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, इंडिया के किसी भी राज्य में आप जाएंगे, कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ेगी वो कार्ड की आप यूज करके 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस उसमें मिल सकता है, मेडिकल सुविधाएं आपको मिल सकती है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि कोविड के समय में एक समस्या उन्होंने देखा, जो दूसरे राज्य के लोग थे, दूसरे राज्य में फंसे हुए थे, उनको खाने की समस्या हो रही थी, उनको राशन नहीं मिल रहा था। ये देखकर उन्होंने सोचा वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो कहीं का भी इंसान, कहीं भी किसी भी राज्य में रहने वाला जो पब्लिक है वो किसी भी राज्य में रह रहा हो उसको वो राशन की सुविधाएं मिल सकेगी। तो ऐसे अच्छे स्कीम जो आपके बीच में ला रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे बंगाल के लोग को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही, बाकी सभी राज्य में जहाँ अलग अलग पार्टी के भी गवर्नमेंट फॉर्म है उस राज्य में जो लोग इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए परमिशन दे पा रहे हैं उनको भी सुविधाएं मिल रही है। तो जब ये सुविधाएं हमारे बंगाल में आती है तो उसको रोक दिया जाता है। लोगों को भी सुविधाएं मिल रही है और इस सुविधाओं को आपको देखकर उसको पास करना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए आपके राज्य में, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मैं आप सभी से ये विनय करता हूँ कि आने वाले समय में आप एक अच्छा सरकार चुने जो आपके लिए, आपके हित के बारे में सोचे। और ये जो राजनीति आज के समय में हमारी माननीय सीएम ममता बनर्जी जी कर रही है कि गंदी राजनीति, देखें आप इस कुछ दिनों में कितने लोगों की हत्याएं हुई है और इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी की सरकार जुड़ी हुई है, टीएमसी के गुंडे जुड़े हुए इस हत्याओं में। बहुत सारी हत्याएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुई है, आप नहकी बोलिए, आप हाजीनगर बोलिए। हाल में हाजीनगर में एक हमारा भाई बहुत यंग एज का था, हाल ही में उसकी शादी हुई थी और बहुत कम उम्र में उसको बहुत बुरी तरह मारा गया। बस उसका दोस्त यही था कि वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था। आपको अगर लड़ाई करनी है तो आप मंच पर लड़ाई कीजिए, आप लोगों को सुविधाएं देने में लड़ाई कीजिए, ना कि किसी की हत्या करके आप उनके आवाज को बंद कीजिए। क्योंकि अब यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ की जनता समझ गई है कि जो सरकार है सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी गलत केस में फंसा सकती है और किसी के भी परिवार को खत्म करने में को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारी परेशानी में, हमारी तकलीफ में, हमारी हर तरह की समस्या में हमारे लिए खड़ा है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि आप लोग सब समझदार हैं और आप 2020 के ईयर में आ चुके हैं और आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो गलत प्रचार हो रही है टीएमसी के द्वारा, इलेक्शन नजदीक है उसके वजह से उनकी प्रचार आप देख ही रहे हैं कि ऐसी सुविधाएं मिलेगी, वैसी सुविधाएं मिलेगी। मैं यही बात आपको समझाना चाहूँगा कि सुविधाएं जब तक ना मिले तब तक विश्वास मत कीजिएगा। सिर्फ कार्ड दे दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुविधाएं मिल रही है। वो कार्ड को पहले इस्तेमाल कीजिए और देखिए उससे कितने लोगों की सुविधाएं हो रही है। अगर कोई भी चीज आपके लिए पास हो रही है तो पहले सुविधाओं को देखिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था
कि विधवा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन को फॉर्म भरा गया था, लेकिन फॉर्म भरने के बाद सबमिट हो गया था, इलेक्शन होने के बाद किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये सब चीजें बस इलेक्शन के समय ही चालू होती है, फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद उसको बंद किया जाता है, सुविधाएं कुछ नहीं मिलती है। तो आप लोग सब इस चीज को ध्यान दें, और मैं इसलिए ये सब चीजें आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बाकी जो पॉइंट है हमारे बाकी यहाँ लोग थे, उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया था, पर ये सब जो चीजें हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, और मुझे लगता है आपका बेनिफिट जहाँ होगा वहाँ मेरा भी बेनिफिट होगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी को शुभकामनाएं।